Hi professionals, my name is Love Chaudhary and I'm behind your screen. And today I'm demonstrating ShadowChat, a secure end-to-end encrypted messaging application built especially for OPSEC conscious users in India. मुझे पता है कि आप लोगों ने एंड टू एंड एनक्रिप्शन का बहुत सारी जगह नाम सुना होगा, लेकिन बिलीव मी इट विल नॉट बी द सेम from the other applications in the market. ठीक है, सो बिफोर वी बिगिन लेट मी स्टेट अ हार्ड फैक्ट कि हमने 2024 से 2026 तक की एक मैसिव डेटा ब्रीच देखा है और हमारे इंडियंस का वो डेटा ब्रीच था और जिनमें बहुत सारे मेन मैसेजिंग एप्लीकेशन या फिर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। कुछ डेटा को सर्कुलेट करने में इन्वॉल्व थे, कुछ यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने के बाद उनसे लीड्स जनरेशन करने के लिए इन्वॉल्व थे। लोग ऐसे काम करते हैं और बोलते हैं कि देयर प्लेटफॉर्म्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, बट बिलीव मी these things will not happen in our case. So the problem we solved with shadow chat is simple but yet not critical. So कौन कौन देख सकता है आपके मैसेजेस को? uh, शायद आपके प्लेटफॉर्म का सर्वर या फिर आपके आपके आईएसपी या फिर आपकी गवर्नमेंट या फिर आपके एप्लीकेशन डेवलपर्स भी। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होगा, वो मैं आपको अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूंगा। ओनली यू एंड योर इंटेंडेंट पार्टनर कैन सी योर कन्वर्सेशंस एंड अप टू अ टाइम, क्योंकि उस टाइम के बाद आप भी उस कन्वर्सेशन को दोबारा नहीं पढ़ पाओगे। I am going to demonstrate some of the points. Our first point will be how our encryption works, and that is military grade, not fake. Second will be live messaging with self-destruct mode and with other modes too. And third will be why we are different from WhatsApp and Telegram. Fourth will be who should use this in India. Okay, so let me explain the encryption first because real encryption matters. On the screen, we can see some keywords like ECDH, P256, and AES-GCM. So ECDH, we further call ECDH, or we call ECDH in expansion form, that is elliptic curve Diffie-Hellman, and it is used for the key exchange, or we can say that it is used uh, in the secure key agreement protocol. And for P256 mathematical curve, it is a standard elliptic curve used in cryptography for secure key exchange. So these type of key exchange with P256 curve are standard and used by NSA for top secret communications, and in our government also, means in our Indian government agencies also they use ECDH with P256 curve, but I can't say that they are using P256 curve because they make the system more secure. But while we move ahead of P256 curve, the speed becomes slower, and the security becomes strong and stronger. So in our case, we are just choosing 256 curve, and then we will move to AES GCM. So AES GCM is like a dabba, a box of iron in which you are storing uh, some important things like gold and silver and having a lock on it. So no one can no one can open that lock without your key and store your gold or silver. So basically that is ASDCM. So now I'm going to explain these key exchanges and encryption in much more better way. Okay, so why we are saying that our application is going to be military grade? Because it is quantum resistant.
and why it is quantum resistant, you will get to know later in this video. So security level, as you can see, that it is military grade. And now we are going ahead of ECDH explanation, that what is ECDH and how the secure key agreement protocol works. So on step first, let us imagine that on step first I have generated or I have selected a key which is a private key and let it be 7, और मेरे दोस्त ने एक की चूज की है जो कि है 9, वो भी उसकी एक प्राइवेट की है जो कि ना ही उसने मुझे बताई है और ना ही मैंने उससे बताई है अपनी प्राइवेट की जो कि है 7। अब सर्वर ने एक नंबर जनरेट करके दिया, वो है 3। अब मैंने उस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, अपनी प्राइवेट की के साथ मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 221। मेरे फ्रेंड ने अपने प्राइवेट की के साथ उस 3 को मल्टीप्लाई किया, नंबर आया 27। नाउ 21 एंड 27 आर पब्लिक की जो कि एक्सचेंज होंगी सर्वर के थ्रू। 27 मेरा दोस्त मुझे भेजेगा सर्वर के थ्रू और 21 मैं उसे भेजूंगा सर्वर के थ्रू। अब 27 मेरे पास आई और 27 को मैंने अपने प्राइवेट की मतलब 7 से मल्टीप्लाई किया, नंबर आया 189। और मेरे फ्रेंड को मिली 21 और 21 को उसने अपने प्राइवेट की के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि है 9। रिजल्ट आया 189, रिजल्ट आया 189, मतलब सेम नंबर है। इसे ही हम बोलते हैं शेयर्ड सीक्रेट की और इस केस में शेयर्ड सीक्रेट नंबर। और ये नंबर हमारा सर्वर कभी भी नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये 7 नंबर नहीं है, ये 9 नंबर नहीं है, और ये 7 और 9 प्राइवेट नंबर्स थे जो कि सर्वर के पास कभी गए ही नहीं। और ना ही मेरा नंबर, मेरा प्राइवेट की मेरे फ्रेंड के पास गई है और ना ही मेरे फ्रेंड की प्राइवेट की मेरे पास आई है। सो इट इज इम्पॉसिबल। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू P256 कर्व। सो यहाँ पे P का मतलब है प्राइम, मतलब अभाज्य संख्या, और 256 यहाँ पे एक बिट नंबर है। अब 256 बिट को हम इक्विवेलेट करते हैं, सो उसका आता है 2 रेज टू द पावर 256 पॉसिबल कीज, मतलब 2 रेज टू द पावर 256 पॉसिबल कीज। सो अगर हम कंपेयर करते हैं एटम्स इस पूरे यूनिवर्स में, मतलब लेट अस इमेजिन दैट इस पूरे यूनिवर्स में कितने एटम्स होंगे। आप इमेजिन करो कि इस पूरे अर्थ में कितने कितने लोग होंगे, कितने पीपल होंगे। सो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इमेजिन करो कि इस यूनिवर्स में कितने एटम्स होंगे, मतलब पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक एस्टिमेट आता है 10 रेज टू द पावर 80। और वहीं पे अगर मैं P256 पॉसिबिलिटीज निकालूं तो वो आता है 10 रेज टू द पावर 77, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे। So, if a notorious hacker is going to perform a brute force attack to manipulate the keys, then it will take 13.8 billion years ago, 8 billion years। और वो इतना 13.8 बिलियन ईयर्स तब लगेंगे जब वो इस अर्थ के सारे कंप्यूटर्स को इंटीग्रेट करके वो अटैक परफॉर्म करेगा। इसीलिए हमने बोला था कि ये क्वांटम रेसिस्टेंट है। चलिए अब हम आते हैं AES GCM इनक्रप्शन के पास। हमने सिक्योर की बना ली, हमने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, मैन इन द मिडिल अटैक नहीं हुआ और हमारा ब्रूट फोर्स अटैक भी फेल हो गया। अब हम आते हैं, अब हम शुरू करते हैं बात करना एक दूसरे से। मैंने एक मैसेज भेजा अपने दोस्त के पास, हेलो दोस्त, मीटिंग एट 3 PM। अब वो जाता है इंक्रिप्शन के अंदर, एईएस उसे स्क्रैम्पल कर देता है इस प्लेन टेक्स्ट को एक अनरीडेबल टेक्स्ट में। और फिर जीसीएम उसमें एक रैंडम सॉल्ट ऐड कर देता है और वो रैंडम सॉल्ट हर एक मैसेज के लिए यूनिक होता है, जिससे हमारा आउटपुट कुछ ऐसा निकलता है। और यही आउटपुट, यही गार्बेज सर्वर के पास जाता है, जो कि सर्वर के लिए बिल्कुल अनयूजफुल होता है। ठीक है। अब
जब ये गार्बेज हमारे यूजर को रिसीव होगा, रिसीव होने के जस्ट पहले एईएस और जीसीएम उसे डिक्रिप्ट कर देगा, इस गार्बेज को एईएस और जीसीएम डिक्रिप्ट कर देगा और हमारे फ्रेंड को हमारा प्लेन टेक्स्ट प्रिंट कर देगा जो कि मैंने उसे भेजा था, हेलो दोस्त मीटिंग एट 3 p.m. So now we are gonna see that how or what kind of attacks does our shadow chat prevent. So पहला आता है मैन इन द मिडिल अटैक, दूसरा आता है सर्वर कॉम्प्रोमाइज, तीसरा आता है रिप्ले अटैक, चौथा आता है ब्रूट फोर्स अटैक, पांचवा आता है क्वांटम कंप्यूटर अटैक, छठवा आता है साइड चैनल अटैक, सातवां आता है डेटाबेस थेफ्ट और डेटाबेस लीक। अगर डेटाबेस लीक होता भी है तो फिर डेटाबेस में कुछ मिलेगा नहीं। To our next part, that is live demonstration part. I think that you get bored of the previous encryption architecture part, so let it see that it will be interesting or not. Let's go. So the first feature will be connection and key exchange, और इस फीचर में हम देखेंगे कि हमने अपने क्लाइंट या फिर हमने अपने पार्टनर के साथ एक सिक्योर कनेक्शन बनाया है या फिर नहीं बनाया, या फिर कनेक्शन के बीच में कोई टैम्परिंग हो गई है, कोई MIMT अटैक हो गया है और बीच में हमारी कोई बात सुन रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जनरेट इनवाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारे क्लिपबोर्ड में एक इनवाइट लिंक कॉपी हो जाएगी और हम उसे अपने पार्टनर को सेंड कर देंगे। जैसे ही हम उसे सेंड करते हैं तो हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है और यहाँ पे डिस्कनेक्ट या फिर ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन शो हो जाता है और हम दोनों के पास एक यूनिक UID आ जाती है और ये आईडी दोनों केसेस में डिफरेंट रहेगी। उसके बाद हम नीचे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे सेशन फिंगरप्रिंट लिखा हुआ और यही मेन पार्ट है जिससे हम पता कर पाते हैं कि हमने सिक्योर की एक्सचेंज की है या फिर नहीं है, फिर हमने की एक्सचेंज सिक्योरली की है या फिर नहीं। हम इस फिंगरप्रिंट को अपने अपने पार्टनर बी या फिर अपने टैब बी से मैच करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों फिंगरप्रिंट सिमिलर नहीं, ये दोनों फिंगरप्रिंट सेम है या फिर नहीं है। इन फिंगरप्रिंट का एक भी कैरेक्टर कहीं मिसमैच तो नहीं है। तो मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो के लिए मैं लास्ट के कुछ कैरेक्टर्स देख रहा हूँ, तो इसमें 90448 है और इसमें भी 90448 है। इसका मतलब है कि कनेक्शन सिक्योरली एस्टैब्लिश हो चुका है, कोई भी टैम्परिंग नहीं हुई है और हम आगे की कन्वर्सेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। Now we will go to our next feature, that is normal messaging with timer. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टाइमर और कुछ डिफ़ॉल्ट टाइमर काउंटडाउन सेट कर रखे हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको 5 सेकंड टाइमर पे, जो कि डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, मैं उससे एक मैसेज भेजता हूँ अपने यूज़र को और देखते हैं कि ये मैसेज 5 सेकंड्स के बाद वाइप आउट होता है या फिर नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही 5 सेकंड्स का काउंटडाउन खत्म हुआ, हमारे सेंडर और रिसीवर के पास से दोनों साइड से वो मैसेज वाइप आउट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 30 सेकंड्स का टाइमर सेट करता हूँ और फिर से कोई इमोजी सेंड करता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 30 सेकंड्स के बाद हमारे रिसीवर के साइड से ये टेक्स्ट मैसेज या फिर ये इमोजी मैसेज वाइप आउट होता है या फिर नहीं। और हाँ, ये टोटली डिपेंड करेगा सेंडर की साइड कि वो हमें कितनी टाइम तक की मैसेज दिखाना चाहता है। मैं सेंडर था, मैंने यहाँ पे 30 सेकंड चूज़ किए, तो फिर यहाँ पे वो मैसेज 30 सेकंड तक की रिटेन करेगा। लेट मी शो यू बर्न आफ्टर रीड, एंड दिस इज आवर मोस्ट पावरफुल ऑब्सेक्ट फीचर। इस मोड में अगर हम बर्न मोड ऑन करते हैं, बर्न मोड पे क्लिक करते हैं और कोई भी मैसेज भेजते हैं या फिर कोई भी इमेज, कोई भी फाइल या फिर कोई भी इमोजी या फिर पूरी कन्वर्सेशन ही हम चलाते हैं इस बर्न मोड को ऑन करके, तो जैसे ही खुद सेंडर भी अगर वो मैसेज सीन कर लेगा, खुद देखेगा, तो सेंडर के साइड से भी वो मैसेज तुरंत बर्न आउट हो जाएगा और अगर वो मैसेज रिसीवर जैसे ही पढ़ता है, रिसीवर के साइड से भी वो मैसेज बर्न आउट हो जाएगा। मतलब एविडेंस कलेक्शन का कोई चांस ही नहीं, ना ही सेंडर की साइड से और ना ही रिसीवर की साइड से। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैंने बर्न मोड ऑन किया और मैं इस बार इमोजी सेंड करता हूँ।
जैसे ही मैंने इमोजी देखे वैसे ही सेंडर की साइड से भी वो मैसेज बर्न हो गए, जैसे ही सेंडर ने देखे, और जैसे ही रिसीवर ने देखे वैसे ही वो मैसेज रिसीवर के साइड से भी बर्न हो गया। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो ये ऑप्शन था हमारा बर्न मोड का। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ। अब ये फीचर हमारा सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ही मैं कोई फाइल चूज करता हूँ, वो पीएनजी हो, मैं इसमें एक पीएनजी एक लोगो फाइल चूज कर रहा हूँ, रिलेटेड बी बीफ लोगो फाइल, और मैं 60 सेकंड्स का टाइमर यूज़ कर रहा हूँ बर्न मोड ऑफ करके। ठीक है, बर्न मोड ऑफ है। अब मैं इसमें एक फाइल यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने ये फाइल चूज़ की और भेजी, वैसे ही ये फाइल बेस64 में कन्वर्ट हो गई है और AES GCM इंक्रिप्शन के साथ, और ये फाइल सेंडर से रिसीवर के पास वेब सॉकेट में गई है, जिससे सर्वर खुद इस फाइल का कंटेंट नहीं देख सकता है। इवन सर्वर इस फाइल का मेटा डेटा भी नहीं देख सकता है। स्क्रीनशॉट डिटेक्शन, दिस विल सेव यू फ्रॉम गेट बिट्रेडेड। ये आपको आपके पार्टनर के धोखे से भी बचा सकता है। अगर वो कोशिश करे प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करके, या फिर स्निपिंग टूल मैनुअली, या फिर विंडोज शॉर्टकट की प्रेस करके स्क्रीनशॉट लेने का, या फिर वो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके आपके कन्वर्सेशन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेने की कोशिश करे, या फिर वो आपके मैसेजेस को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करे, मतलब कॉपी करने की कोशिश करे, फिर भी वो हर बार फेल हो जाएगा और आपसे पकड़ा जाएगा। लेट मी शो यू हाउ। अगर मैं कोई टेक्स्ट मैसेज भेजता हूँ और उसके बाद मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, ये प्रॉम्प्ट दोनों साइड चला जाएगा, और इसमें ये शो होगा कि आपका आपका पार्टनर आपके मैसेज को या फिर आपके स्क्रीन रिकॉर्ड या फिर स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा था। अब मैं प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करूंगा, वैसे ही यहाँ पे फिर एक पॉपअप वार्निंग आ जाएगी सिक्योरिटी की। सो ये था हमारा स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन डिटेक्शन या फिर कॉपी पेस्ट डिटेक्शन का फीचर। Now comes cover mode, and it is based on plausible deniability. इस मोड की खास बात यह है कि अगर आपने किसी को इनवाइट लिंक भेजा है और आपको लगा कि वो बंदा ऑथराइज नहीं है इनवाइट लिंक को एक्सेस करने के लिए, लेकिन फिर भी वो आपके इनवाइट लिंक को एक्सेस कर रहा है, सो आप, और अगर आपको उसके साथ साथ कोई इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल या फिर कोई इंटेल सेंड करना है और आप चाहते हैं कि वो क्रेडेंशियल या फिर इंटेल सिर्फ आपका ऑथराइज्ड पर्सन ही देख पाए, सो अब आप यूज करेंगे कवर मोड। कवर मोड हमारे बर्न मोड के साथ काम करता है। अब मैं इस कवर मोड में मैं लिखता हूं कि दिस इज माय इंस्टा पास love123@. जैसे ही मैं सेंड करूंगा, वैसे ही मेरे से यहाँ पे पूछेगा कि आप डिक्वायर्ड टेक्स्ट क्या डालना चाहते हो, मतलब कि अगर 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 वो बंदा अनऑथराइज होगा, सो आप उसको क्या टेक्स्ट शो करना चाहते हो। मैंने बाय डिफॉल्ट नथिंग इंपॉर्टेंट हियर लिख रखा है। जैसे ही ये मैसेज उसके पास जाएगा, एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा पैराफ्रेज डालने का। अगर वो मेरा ऑथराइज पर्सन होगा, उसको पैराफ्रेज पता होगा और वो डालेगा ऑफसेट 2024 और यहाँ पे एंटर। उसको उसको जो मेरे को मैसेज दिखाना था, जो मुझे क्रेडेंशियल भेजना था, वो यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर 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 वो बंदा अनऑथराइज होगा, तो मैं दिखाता हूँ कि उसको क्या मैसेज दिखेगा। मैं इस टैब में कवर मोड को ऑन कर लेता हूँ और बर्न मोड को ऑन कर लेता हूँ। अब इसमें लिखता हूँ इज माय पास, सेंड करूंगा, और यहाँ पे डिक्वायर्ड टेक्स्ट तुम रियल नहीं हो। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पे आएगा और मैं एक अनऑथराइज पर्सन, मैं रैंडम सा पैराफ्रेज डालता हूँ और इसे खोलने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही वो यहाँ पे तुम रियल नहीं हो, मतलब कि वो उसे डिक्वायर्ड टेक्स्ट दिखा देगा, ना ही love123 दिखाएगा, क्योंकि वो मैसेज जो रियल मैसेज था वो उसी को दिखाएगा जो यहाँ पे सही पैराफ्रेज डालेगा। This is the most excellent and most intelligent feature of this shadow chat application. Type and new mode, and it is for anti-forensics. Let me show you what happens when you need to emergency wipe everything.
अगर हम एक लॉन्ग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और हमारे पास कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है या फिर ना चाहते हुए भी हमारे पास कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो हमारे चैट्स को या फिर जो हमारे एप्लीकेशन को का फोरेंसिक्स करना चाहे और देखना चाहे कि हम क्या चैट्स कर रहे थे, तो फिर भी वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। लेट मी शो यू। अगर हम लगातार कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और एक हमारी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन है विद इमोजीज, विद फाइल्स एंड विद एवरीथिंग, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी इमरजेंसी आ रही है, सो मैं वाइप मोड क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं वाइप मोड क्लिक करूंगा, इस वाइप मोड से सारा लोकल स्टोरेज, सारे सेशन डेटा और यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट भी रीसेट हो जाएगी। मतलब कि सामने वाला बंदा फॉरेंसिक्स करेगा क्या जब उसे हमारी रियल फिंगरप्रिंट ही नहीं मिलेगी। सो मैं वाइप मोड पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ। सो